हम लोग यहाँ पर कुछ इसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक बात पता है, हम लोगों ने कल भी एक चीज को डिस्कस करा था। ये मेरा क्लोरोबेंजीन होता है बच्चों, ये जो मेरा क्लोरोबेंजीन है, इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। एज इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, इन दैट सिचुएशन, यहां पर आप अगर कभी भी कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, तो आज अगर आप कभी भी कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन और क्लोरीन। क्यों? आज मैं कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज माई मोलिक्यूल इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए आज अगर मैंने यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हेडिंग डाला और मैंने यहां पर बच्चों क्लोरोबेंजीन अगर यूज में लिया और मैंने अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर NaOH के साथ में करवाई, तो आज अगर आप इस OH को अगर क्लोरीन मतलब अगर OH क्लोरीन की जगह पर अगर आप OH लाना चाहते हो या OH को यहां पर क्लोरीन की जगह पर लेकर आना चाहते हैं, तो ये रिएक्शन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। इफ यू वांट टू रिएक्ट क्लोरोबेंजीन विद द NaOH, और अगर आप ये सोचें कि मैं यहां पर OH को Cl की जगह पर ले आऊं या Cl को आप अगर OH से सब्सटीट्यूट अगर करना चाहते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल इजीली। इट मे पॉसिबल, but what I am telling you, it is not possible easily. Why doesn't possible easily? Because chlorobenzene is highly stable due to the resonance. As it is highly stable due to the resonance, that's why double bond character will come between the carbon or chlorine, or as the double bond character will come between the carbon or chlorine, so it is not easy to break the bond between the carbon and chlorine. That's why the substitution of chlorine is not easy here. In that situation, definitely we can substitute chlorine, but for the substitution of the chlorine we have to use the high temperature. That is the reason, as you are getting in the reaction, we are using the temperature approximate 350 degrees Celsius temperature. After the 350 degrees Celsius temperature and 200 atmosphere pressure, we can do this reaction, and after the high temperature and pressure, our OH will substitute the chlorine, and after the reaction my compound will turn into the phenol. So what I want to explain here, whenever the chlorobenzene is given to you and you want to react your molecule with the aqueous NaOH, in that condition, since my chlorobenzene is highly stable, that is the reason, since its stability, if you want to replace chlorine by the OH, so high temperature and pressure is required. If you want to do this reaction at the room temperature, then it is not possible here. That's why to do the reaction, use the high temperature pressure. After the high temperature and pressure, your molecule will turn into the phenol, and हमारा यहाँ पर ये वाली जो reaction है, that is known as the nucleophilic substitution, because one nucleophile, one OH minus is substituting the another nucleophile, another Cl minus. That's why this reaction is known as the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मेरा यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा था। दिस रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज अ डाउस प्रोसेस। यस, याद रखना, अगर आप लोगों ने कभी भी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ करवाई और आज अगर आप कभी भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अगर रिएक्शन को करवाओगे, तो यहाँ पर फिनोल बनेगा। एंड वन मोर थिंग, दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज द डाउस प्रोसेस। इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसका नाम होता है डाउस प्रोसेस। ऐसे ही अगर आपको क्लोरोबेंजीन अगर दे रखा है और आज अगर आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराई, if you want to do the reaction of chlorobenzene with the ammonia, again you know very well, my chlorobenzene is again stable due to the resonance. Since my chlorobenzene is again stable due to the resonance, so again we know very well substitution of the chlorine is not easy. Since substitution of the chlorine is not easy, so of course we have to use the high temperature and pressure. That's why we are using approximate 473 Kelvin temperature, or we are using the 200 degree Celsius temperature. लगभग 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर आपकी रिएक्शन होगी. My NH2 will replace the chlorine, and after the reaction my molecule will turn into the aniline. तो बच्चों क्लोरोबेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये कभी भी आसान नहीं होती.
Since they are not the easy, that is the reason if you want to make it easily in that condition आपको high temperature और pressure को use में लेना पड़ेगा. So these two illustrations are there जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द डाउज रिएक्शन. ये भी हमारा एक डाउज प्रोसेस कहलाएगा. अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन दे रखा है, CuCN के साथ रिएक्शन करा, अगेन द अप्रोच इज सेम. माई साइनाइड विल रिप्लेस द क्लोरीन. एज द साइनाइड विल रिप्लेस द क्लोरीन, साइनाइड विल कम ऑन द बेंजीन एंड माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द बेंजोनाइट्राइल. मेरा जो कंपाउंड होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू द बेंजोनाइट्राइल. तो ओवरऑल कंसेप्ट मेरा सेम है, ओवरऑल थीम मेरी सेम है, जो चीज मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था. अब यहां पर हमें जो अगला टर्मिनोलॉजी यूज में लेना है बच्चों, दैट इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन. आपको मैंने दो टर्मिनोलॉजी पहले भी बताई थी. एक रिएक्शन होती है बच्चों वुड्स, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. एक रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी वुड्स फिटिग. एंड टुडे वी आर यूजिंग द रिएक्शन फिटिग एंड वुड्स फिटिग बोथ. मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर. मैंने आपको क्या बात पहले बताई थी, आज अगर आप कभी भी वुड्स की अगर बात करोगे, वहां पर क्या होता है, टू एल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद ईच अदर. अगर मैंने वुड्स फिटिग की अगर बात करी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड्स फिटिग. यहां पर एक तो एल्काइल हैलाइड होगा और अनदर इज नोन एज द एराइल हैलाइड. वन एल्काइल हैलाइड और वन एराइल हैलाइड. और एक आती है बच्चों केवल और केवल फिटिग रिएक्शन. अगर हम फिटिग रिएक्शन की अगर बात करें, सो व्हाट्स द फिटिग रिएक्शन. यहां पर आपको यूज में लेने हैं टू एराइल हैलाइड. रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम. आज अगर आप देखोगे तो ये मेरा ब्रोमोबेंजीन है. आज अगर आपको ब्रोमोबेंजीन दे रखा है विच इज नोन एज द एराइल हैलाइड. अगर आपने एराइल हैलाइड की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कराई, हाउ यू विल डू द रिएक्शन. इफ यू वांट टू डू द रिएक्शन देन Br will react with the Na to equivalent of the Na. Br will form the CH3 will come on the benzene and my answer will be known as the toluene. अगर मैंने यहां पर फिटिग लिया सॉरी मैंने आपको क्या बताया, what is the Woods reaction. Two alkyl halide we will use. What is the Woods fitting. One alkyl halide one aryl halide we will use. And what is the fitting reaction. Two aryl halide we will use. तो आज अगर आपने दो एराइल हैलाइड को अगर यूज में लिया, वन इज नोन एज द क्लोरोबेंजीन. अगर मैंने इसकी रिएक्शन दूसरे एराइल हैलाइड के साथ करवाई तो यहां पर आपका NaCl निकल जाएगा. टू बेंजीन विल कनेक्टेड विद ईच अदर और as two benzene will connected with each other, my molecule will turn into the biphenyl and reaction is basically known as the Fittig reaction. So तीन reaction which are interconnected with each other. टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम. वो मैंने यहां पर आपको सिंगल फ्रेम में समझाने की कोशिश करी थी. आज अगर हम यहां पर अगर देखें तो वो मैंने आपको यहां पर बताया. टू एल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद द सोडियम नोन एज द वुड्स. One alkyl, one aryl known as the Wurtz Fittig and two aryl halide if you are using then reaction is known as the Fittig reaction. तो हमने यहाँ पर Wurtz Fittig को डिस्कस करा, हम लोगों ने यहाँ पर Fittig को डिस्कस करा और since we have already discussed the Wurtz reaction तो हम उसको वहाँ पर दोबारा पढ़ने की नीड नहीं समझते. एक रिएक्शन आती है उल्मैंस, बड़ा सिंपल सा फंडा है. Fittig रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने हेलोबेंजीन लिया, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने सोडियम के साथ कराई. आज अगर आप हेलोबेंजीन की रिएक्शन आप सोडियम के साथ मत कराओ, बस इतना सा काम करो. जैसे अभी मैंने आपको एक रिएक्शन में डिफरेंस सिखाया था, सैंडमेयर और गैटरमेन. व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द बोथ रिएक्शन. एक में आप कॉपर सोल्ट को यूज में ले रहे थे, दूसरे में आप कॉपर पाउडर को यूज में ले रहे थे. बाकी सारी चीजें सेम थी. बच्चों उल्मैंस में क्या होता है, मैं यहां पर हेलोबेंजीन लूंगा, मुझे हेलोबेंजीन के दो इक्विवेलेंट को यहां पर यूज में लेना पड़ेगा, बट एट द प्लेस ऑफ द सोडियम आई विल यूज द कॉपर. आपको कुछ भी नहीं करना, अगेन यू हैव टू यूज द मेटल, बट द पॉइंट इज दैट व्हाट यू हैव टू यूज, विच मेटल यू विल यूज हियर, आपको बस कॉपर को यूज में लेना है. मेरे को यहां पर आयोडोबेंजीन अगर किसी ने अगर दे दिया, मैंने अगर उसकी रिएक्शन अगर कॉपर के साथ कराई और एज आई विल डू द रिएक्शन और आपने अगर हीट करा, कुछ भी नहीं होगा.
यहां से ये जो कॉपर है ये आपके आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही आपका कॉपर आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, टू बेंजीन विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, दैट विल बी नोन एज द बाइफिनाइल, और आपका यहां पर कॉपर का आयोडाइड बन जाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज द उल्मांस रिएक्शन। तो जो हम लोगों ने फिटिक रिएक्शन पढ़ी, वेयर वी आर यूजिंग द हैलोबेंजीन इन केस ऑफ द फिटिक रिएक्शन, अगर मैंने सोडियम को केवल कॉपर से रिप्लेस करा, व्हेनेवर यू विल कंपेयर द बोथ रिएक्शन, आपको केवल इतना सा फील डिफरेंसेस क्या नजर आएंगे। आज आप रिएक्शन को फील करो, यहां पर आपने हेलोबेंजीन लिया, आपने यहां पर सोडियम लिया, आपका प्रोडक्ट बाइफिनाइल बना। आप फील तो करो डिफरेंसेस। यहां पर आप लोगों ने आयोडोबेंजीन लिया, जिस जगह पर आपने सोडियम लिया उसकी जगह पर आपने कॉपर को यूज में लिया, अगेन माय आंसर इज बाइफिनाइल। अगर मैं यहां पर कोई डेरिवेटिव ऑफ हेलोबेंजीन अगर यूज में ले रहा हूं तो मुझे तो उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, सिंपली आई विल डू द रिएक्शन, बट द नेम ऑफ द रिएक्शन विल चेंज, दैट इज कॉल्ड एज द उल्मांस रिएक्शन। अगर हम अगली चीज को अगर डिस्कस करें, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? वी नो वेरी वेल। क्या मतलब होता है रिडक्शन का? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आज मुझे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करना है, ये मुझे कंपाउंड दे रखा है ब्रोमोबेंजीन, आज अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन का अगर रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है ना बच्चों, हम लोग कोई ना कोई मेटल यूज में लेते हैं। आप निकल यूज में लेते हो, आप प्लेटिनम यूज में लेते हो, आप निकल और एल्यूमिनियम का एक एलोय होता है, इस एलोय का मैं आपको नाम बताता हूं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेने निकल। एक्चुअली निकल को एल्यूमिनियम के साथ डिसॉल्व किया जाता है, गर्म किया जाता है, एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाएगा, निकल का पाउडर बनेगा, पाउडर बनने के कारण निकल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द रेने निकल। रेने निकल एक तरह से रिएक्शन को, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज में लिया जाता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज में लिया जाता है। मैंने ब्रोमोबेंजीन दे रखा है, मैंने उसकी रिएक्शन रेने निकल की प्रेजेंस में कराई, विच इज द एलोय ऑफ द निकल और एल्यूमिनियम। कुछ भी नहीं होगा, सिंपली यू हैव टू ऐड द हाइड्रोजन। एज यू विल ऐड द हाइड्रोजन, एक HBr निकल जाएगा, हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा, माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द बेंजीन, मेरा जो कंपाउंड रहेगा वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर क्लोरोटोल्यून ले लिया, मैंने वही निकल एल्यूमिनियम का एलोय यहां पर यूज में लिया, विच इज नोन एज द रेने निकल। सिंपल टास्क है, ये मेरा जो H, इधर से एक H आएगा, Cl के साथ रिएक्शन कर HCl निकल जाएगा, एक H यहां पर आ जाएगा, आपको यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन को यूज में लेना है, एज यू विल यूज द नेसेंट हाइड्रोजन, HCl निकल जाएगा, एक H यहां पर प्लेस हो जाएगा, जैसे ही एक H यहां पर प्लेस हो जाएगा हमारा आंसर टोल्यूइन की फॉर्म में आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द रिडक्शन। तो हमें नॉर्मली हाइड्रोजन को ऐड कर कर आंसर को निकालना है। हेलोबेंजीन मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, मैंने भी आपको बताया ना, हेलोबेंजीन ने जब आपके सोडियम के साथ रिएक्शन करा तो उस रिएक्शन का नाम फिटिक रिएक्शन था। हेलोबेंजीन ने जब आप लोगों के कॉपर के साथ रिएक्शन करा तो उसका नाम उल्मेंस रिएक्शन था। एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड। आज अगर मुझे कोई भी हेलोबेंजीन अगर दे रखा है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, अगर आप लोगों ने कभी भी इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, जैसे ही आप लोगों ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई, तो जैसे ही आप लोग ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और हेलोजन, और एज द मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और हेलोजन, ये मेरा बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड, एंड दिस फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड इज कॉल्ड एज, यहां पर क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड होगा हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम देंगे। तो आज अगर आप लोगों ने कभी भी हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई, मेरा मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम बाइवेलेंट होता है, दोनों तरफ बॉन्ड बना सकता है। अगर तुमने इसकी रिएक्शन अगर लिथियम के साथ करे, तो जैसे ही अगर आपने लिथियम लिया, एक लिथियम आयोडीन के साथ रिएक्शन कर कर LiI बना देगा, दैट इज नोन एज द लिथियम आयोडाइड, और एक लिथियम यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द फिनाइल लिथियम।
फिनाइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और अगेन आई वांट टू रिपीट हियर, दे आर बेसिकली नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वाले जो मेरे कंपाउंड होंगे दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। योर कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेटल। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोला। कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैग्नीशियम मेटल, carbon is directly connected with the lithium metal. So wherever any organic species is directly connected with the metal, they are basically known as the organometallic compound. ये वाली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। One of the most important, and you know very well what is the terminology, that is basically called as the DDT. आप लोगों को याद होगा बच्चों, हम लोग DDT को एज अ इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज में लिया करते थे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आजकल डीडीटी बैन कर दिया गया है। डीडीटी बैन क्यों हो गया है? क्योंकि ये मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कभी भी डीकंपोज नहीं कर सकते। आपने कभी सुना होगा बच्चों, पॉलीथीन इज बैन। क्यों? क्योंकि वो आपका डीकंपोज नहीं हो पाता। जो चीज डीकंपोज्ड नहीं होती ना, वो हमेशा पोल्यूशन इंक्रीज करती है। ये जो डीडीटी होता है, डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल स्पीशीज विच कैन नॉट बी डीकंपोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट इज द रीजन, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डीकंपोज्ड अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सॉइल को खराब करेगा, ये पोल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो इन सारी बातों को समझने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन हियर व्हाट इज डीडीटी। अगर हम डीडीटी की बात करें, एक कंपाउंड होता है बच्चों ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। इस ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड का मतलब होता है CH3CHO को एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं, जिसके तीनों H को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस करा। ये मेरा कहलाएगा ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। और ये जो मेरा ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड होता है, इसका एक नाम और होता है विच इज नोन एज द क्लोरल। अगर मैंने क्लोरल की रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन के साथ करवाई, इफ माई क्लोरल विल रिएक्ट विद द क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो व्हाट विल हैपन हियर, यहां पर क्या होगा बच्चों, ये दोनों के दोनों H ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर दे विल रिमूव वाटर, और एज दे विल रिमूव वाटर, यहां पर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज द डीडीटी। बच्चों इसको डीडीटी नाम क्यों दिया गया? डीडीटी का मतलब होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज द डीडीटी, द रीजन इज दैट, अगर मैं इसके नाम को अगर समझूं कि इसको डीडीटी क्यों बोला, डीडीटी का मतलब डाईक्लोरो का डी, डाईफिनाइल का डी, ट्राइक्लोरो का टी, तीनों मिलकर डीडीटी बनाते। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का इथेन, दे आर नोन एज द डीडीटी। तो मैंने यहां पर क्या बताया, 2 moles of chlorobenzene reacts with the chloral in presence of the H2SO4 to give 1,1,1 trichloro 2,2 पेरा 2,2 डाई आएगा यहां पर, पेरा क्लोरोफिनाइल इथेन एंड एन इंसेक्टिसाइड कॉमनली नोन एज द डीडीटी। ये जो मेरा डीडीटी होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज में लिया जाता था। लेकिन वन मोर पॉइंट अबाउट द डीडीटी इज दैट, मैंने आपको बताया बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आज ये जो होता है ये मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कैन नॉट डीकंपोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज नोन एज द डीडीटी। जहां पर हमारा क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ रिएक्शन कर कर इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल टर्न इनटू द डीडीटी, एंड डीडीटी इज बेसिकली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। यूज लिया जाता था, आजकल बैन है, आजकल आप इसको यूज में नहीं ले सकते। क्यों बैन है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल स्पीशीज। अब हम लोग यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड में एक केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अगर मैं हेलोबेंजीन की अगर बात करता हूं,
तो बच्चों जैसे ये मेरे पास में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हम किसी को भी अगर कंसीडर अगर करते हैं, तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। एज दिस मॉलिक्यूल शो द रेजोनेंस, ऐसे केस में यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, और ये इस प्रकार से रेजोनेंस रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर क्रिएट होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज पेरा पोजीशन पर क्रिएट होगा, एंड अगेन योर नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द ऑर्थो पोजीशन। तो मैंने आपसे क्या बोला, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा। हेलोबेंजीन जो है ना, ये प्लस एम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ओवरऑल हेलोबेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रेजोनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देते हैं, इंडक्टिव के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करते हैं। विड्रॉइंग टेंडेंसी डोनेटिंग टेंडेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है ड्यू टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजन। तो सुनो, यहां पर लिख रखा है हैलोजन आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग माने जाते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते नहीं है उससे ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करने की पावर होती है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। बट ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ हैलोजन दे आर वीकली ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आज अगर मेरा हेलोबेंजीन जब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, तो अगर मेरे हेलोबेंजीन ने अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर है और एक बार पेरा पोजीशन पर है। सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, that's why this is known as orthopera directing। तो आज अगर आप कभी भी हेलोबेंजीन की अगर बात करोगे तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर कहां पर होगी, ऑर्थो और पेरा वाली पोजीशन पर होगा। आज आप देखो, मैंने जो चीज आपको बताई थी वो की वही चीज मैंने आपको बताई। आपने ब्रोमोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी, एक बार नेगेटिव ऑर्थो पर आ रहा है, अगली बार नेगेटिव पेरा पर आ रहा है, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव वापस ऑर्थो पर आ रहा है। तो आज देखो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अगर ऑर्थो पेरा ऑर्थो पर है, तो अगर कोई भी अटैक करने वाला, अब अटैक करने वाला हु विल अटैक हियर, अटैक करने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आकर अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आकर अटैक करेगा, आइदर इट विल अटैक एट ऑर्थो पोजीशन और इट विल अटैक एट द पेरा पोजीशन, और एज इट विल अटैक एट द ऑर्थो और पेरा, तो वो दो जगह पर अटैक करेगा। सी ऑब्जर्व दैट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अगर मेरा कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, कैन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम एट ऑर्थो और पेरा पोजीशन रिलेटिव टू Br। आपके ब्रोमोबेंजीन ने रेजोनेंस को शो करा, जैसे मेरे ब्रोमोबेंजीन ने अगर रेजोनेंस को शो करा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट द ऑर्थो और पेरा पोजीशन। सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट द ऑर्थो और पेरा, so whenever any electrophile want to attack here, why electrophile want to come here, because negative charge is there, so of course who will attack here, which is having the positive, or who is having the positive, electrophile is having the positive. So whenever your electrophile want to attack here, in that condition electrophile will attack at the ortho or para, or they will substitute the hydrogen present at the ortho or para with respect to the bromine, or they will attach here. See the reaction. This is my bromobenzene. If this is my bromobenzene, so in the bromobenzene, what I am telling you, bromobenzene is basically electron donor.
Since bromobenzene is electron donor, so electron density is higher at the ortho para or ortho. Suppose if you will do the nitration, suppose if you will do the halogenation, suppose if you will do the sulfonation, the first reaction is known as sulfonation. Sorry, first reaction is known as the nitration reaction. आज जो हमारी पहली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन. What is the naming of another chemical reaction? It is known as the halogenation. What is the meaning of another reaction? That is called as the sulfonation. What is the naming of another reaction? It is known as the Friedel-Crafts reaction. ये मेरी Friedel-Crafts reaction होती है. तो इन द नाइट्रेशन रिएक्शन अगर HNO3 और H2SO4 अगर आपस में रिएक्शन करेंगे, हाउ दे विल रिएक्ट? अगर हम लोग नाइट्रेशन की अगर बात करें तो नाइट्रेशन में कौन होगा? HNO3. हाउ HNO3 विल सी? आज आपका HNO3 ऐसा नजर आएगा. और हाउ H2SO4 विल लुक लाइक? H2SO4 विल बी लाइक दैट. Who is stronger acid between the H2SO4 और HNO3? H2SO4 ज्यादा stronger acid है, तो ये यहां से H प्लस की फॉर्म में रिलीज होगा. HNO3 will give the OH माइनस और as HNO3 will give the OH माइनस, तो यहां पर क्या बनेगा? NO2 प्लस का फॉर्मेशन होगा. इधर आपका HSO4 माइनस बनेगा और इधर आपका वाटर निकल जाएगा. और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द orthor para. As your electrophile will attack at the orthor para, तो इन दोनों ने मिलकर NO2 को प्रोड्यूस करा. As they will produce the NO2, we know very well electron density first higher at the ortho as well as it is higher at the para. So once NO2 will connect at the ortho, another time NO2 will connect as a para, and your two molecule will formed here. Since they are present at the adjacent position, so they will repel each other. और यहां पर रिपल्शन कम होगा. सो दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज द मेजर एंड दिस प्रोडक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ माइनर. एंड आज आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है. सिंस योर इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग हियर एंड रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन केस ऑफ द ब्रोमीन, हु विल अटैक हियर? ब्रोमीन में आपका Br प्लस आकर अटैक करेगा. Where your Br plus will attack? Once it will attack at the ortho, another time it will attack at the para. As it will attack at the ortho और para, मेरा एक बार Br ortho पर जुड़ा, एक बार para पर जुड़ा. They are close to each other, so they will repel each other, and this repulsive forces decreases the stability. That is the reason this product will be the minor and this product will be the major. So your two compound will form. Sulfonation. अगर अपन सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में कौन यहां पर क्या होगा? सल्फोनेशन में सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा? SO3H के थ्रू होगा. मेरा SO3H एक बार ऑर्थो पर कनेक्ट होगा, मेरा SO3H एक बार पेरा पर कनेक्ट होगा. अगेन टू प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड. दिस वन विल बी नोन एज द मेजर प्रोडक्ट, दिस वन विल बी नोन एज द माइनर प्रोडक्ट, और दैट इज अगेन नोन एज द सल्फोनेशन. Nitration is always done in the presence of the combination of HNO3 plus H2SO4. Sulfonation is done by the H2SO4 or SO3. Halogenation is reaction with the halogen in the presence of the iron in the presence of any halogen carrier. और एक रिएक्शन होता है Friedel-Crafts एल्काइलेशन. CH3Cl और AlCl3 के कॉम्बिनेशन की रिएक्शन आपको करवानी है इसके साथ. हाउ यू विल डू द रिएक्शन? आज अगर हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ये जो मेरा CH3Cl है, सबसे पहले इट विल रिएक्ट विद द AlCl3. AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एज AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या आज अगर अपन देखें हैलोजन कैरियर अगर होगा, सो इट इज द हैलोजन कैरियर. सो एज इट इज द हैलोजन कैरियर, तो यहां पर ये वाला जो मेरा Cl होगा, इस Cl को AlCl3 एक्सेप्ट करेगा. जैसे ही एक्सेप्ट करेगा,
CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा और दिस CH3 प्लस AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग बात अगर करते हैं तो ऐसे केस में यहां पर यू हैव टू रिमेंबर दिस CH3 प्लस विल अटैक ऑन द बेंजीन। आज अगर अपन देखें तो ये जो मेरा CH3 प्लस है, ये वाला CH3 प्लस आज आपके ऑर्थो और पेरा पर अटैक करेगा। तो दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर और दे विल प्रोड्यूस द CH3 प्लस। CH3 plus is your electrophile. Once it will attack at the ortho position, another time it will attack at the para position. This product will be considered as a major. This is basically known as the minor, and two type of the product is known as the formed during the reaction. One is known as the minor, another is known as the major. So why these reactions are known as the electrophilic substitution reaction? Because whenever you will see these reaction, who is attacking first? Your electrophile is attacking first. In case of the nitration, NO2 plus is attacking here. In the sulfonation, SO3H is basically substitute the hydrogen atom, SO3H plus अटैक करेगा या आपका SO3 अटैक करेगा। यहाँ पर हेलोजिनेशन में ब्रोमीन प्लस अटैक करेगा एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलियम आयन, यहाँ पर आप लोगों का अल्काइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन अटैक करेगा। और जहां पर ये अटैक करेगा उस पोजीशन का नाम होगा फर्स्ट, आइदर इट विल अटैक एट द ऑर्थो और इट विल अटैक एट द पेरा। चूंकि ऑर्थो पर यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, that is the reason ortho product will formed comparatively in a lower amount than the para product, and these are basically known as the electrophilic substitution reaction, and this chapter is basically known as the haloalkane and haloarine which has been finished here. I hope आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। Thank you so much everyone.